Good morning, students. In the last few videos of class 12 business studies, we discussed all the chapters related to part A. The first chapter, which are related to the nature and significance of management, chapter 2, principle of management, chapter 3, business environment, chapter 4, planning, 5th, organizing, 6th, staffing, 7th, directing, and 8th, controlling. So after discuss the whole chapter of part A, now we will move to the part B, that is business finance and marketing. You know very well, this part is totally different from the part A. In the part A, we discussed all the aspect related to the management when we are doing a management. So in this situation, most of the important parts, most of the important topics which are necessary to study already covered in the last few videos. सो आई होप कि जिस तरह से आपको पार्ट ए के सारे टॉपिक्स ईजिली क्लियर हुए हैं, हम लोग पार्ट बी के भी जो चैप्टर्स हैं, टोटली 4 चैप्टर्स आर कैटेगराइज्ड इन द पार्ट बी. In part B, there are basically 2 units. That is, the first unit is business finance and second unit is marketing. So the 2 units which divided into 4 chapters, from which 2 chapters each from 1 unit. Business finance divided into 2 chapters and marketing already divided into 2 chapters. So in the whole business studies syllabus, they are basically 12 chapters, total 12 chapters. Out of them, 8 chapters from the part A and 4 chapters from the part B. And as I say, business finance include 2 chapters and marketing include 2 chapters. And one more important part regarding part A, that is, a part A is totally based on the management. In the part A, we discussed the principle of management given by Fayol as well as F.W. Taylor, and the basic concept related to the management. What is management? What is the responsibilities of manager? What are the advantage of managers? What are the function of the management? Management's nature, that is as a science, art, or profession, as well as the most important part is coordination, which is essence of management. As well as in the part A, we discussed factors related to business environment. You know, our business is running in uncertainty. You know very well, change is the law of nature. So basically, when we are doing a management, when we are doing a planning, when we are doing a organizing, so all the things which are totally depend on future condition, and future condition will be summarized into the business environment. Business environment are included all those forces and powers which affects the business, but business cannot be controlled on these types of forces, like social environment, technological environment, legal environment, political environments, etc. As well as in the part A, business environment, we discuss different kind of economic scheme, that is new economic policy 1991, demonetization, as well as we discuss the impact of demonetization. And after that, we discuss in the part A the 5 important function of management, that is planning, organizing, staffing, directing, and controlling. So now we will move to the part B, that is business finance and marketing. So I hope, once again, I hope this part will be easy for you and easily understandable for you. So let's start the first unit of part B, that is business finance, which
divided into two parts, in which is divided into two chapters. So let we discuss the first chapter of part B. The first chapter of part B, that is chapter number 9, that is a financial management. So let's we start today's video. The first one, the first part, the first topic of this part, that is concept of business finance. Money required for carrying out business activities called business finance. So simple definition of business finance means money required for carrying out business activity. बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए हमें मनी की रिक्वायर्ड होती है, मनी की ज़रूरत होती है, उसी को हम लोग बिजनेस फाइनेंस कहते हैं. यू नो वेरी वेल, जब हम कोई काम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे मन में एक टर्म आता है, दैट इज़ फाइनेंस. फाइनेंस कहाँ से आएगा? दैट इज़ अ मनी. सो बिजनेस को चलाने के लिए मनी की ज़रूरत होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस. टू स्टार्ट द बिजनेस, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग. दिस इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल. यानी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस पैसे से हम अपने प्लांट को खरीद सकते हैं, मशीन खरीद सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद सकते हैं. सो दीज आर द बेसिक नेसेसिटी फॉर एनी बिजनेस. सो दिस इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल. तो उसको हम लोग फिक्स कैपिटल बोलते हैं. इवन एक्वायरिंग इनटेंजिबल एसेट्स लाइक ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स रिक्वायर्ड फाइनेंस. फर्दर फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस. दूसरे तरह के पैसे की ज़रूरत होती है, वो है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. यानी एक पैसा मुझे ऐसा चाहिए बिज़नेस चलाने के लिए जो मेरे पास लॉन्ग टर्म रहे. यानी मुझसे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जो एसेट्स मेरे साथ लॉन्ग टर्म वे में रहेगी, जैसे फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज़ अ फिक्स कैपिटल. यानी बिज़नेस को चलाने के लिए यू नो वेरी वेल कि हमारे पास लैंड होना चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए, प्लांट होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, तब हम अपने बिज़नेस को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं. और ये सारी चीज़ें बिज़नेस में लॉन्ग टर्म वे में हमें बेनिफिट देंगी. सो अगर हम इसमें पैसा निकालते हैं तो ये बिज़नेस फाइनेंस का कौन सा पार्ट होता है? दिस इज अ फिक्स कैपिटल पार्ट. और बिज़नेस चलाने के लिए हमें कई तरह के इंटेंजिबल एसेट्स की ज़रूरत होती है, लाइक ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट. सो आज के मॉडर्न युग में, मॉडर्न ज़माने में यू नो वेरी वेल इन सब की काफ़ी इंपॉर्टेंस है. ट्रेडमार्क हो, चाहे पेटेंट्स हो, चाहे कॉपीराइट हो, ये हमारे बिज़नेस को काफ़ी प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं. सो दैट्स वाई वी कैन से कि अगर हमें बिज़नेस चलाने के लिए फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होती है, यानी ऐसी जगह पैसा लगाने की ज़रूरत होती है जहाँ पे वो एसेट्स हमें लॉन्ग टर्म वे में बेनिफिट देगी, तो उसे हम लोग फिक्स्ड फाइनेंस बोलते हैं, दैट इज़ अ फिक्स कैपिटल. इसके अलावा बिज़नेस को चलाने के लिए, डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत होती है. That is, salary and wages have to be paid, rent, various bills and premiums are to be paid, raw materials and other supplies have to be brought. This is requires finance. So we can say the finance is the lifeblood of any business for its survival and growth. यानी बेसिकली अगर हम पूरे बिजनेस फाइनेंस को पढ़ें तो द फर्स्ट पार्ट इज़ मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस. बिज़नेस को चलाने के लिए मनी की ज़रूरत होती है, उसी को हम बिज़नेस फाइनेंस कहते हैं. और इस पूरे फाइनेंस को दो पार्ट में बांटा जाता है. द फर्स्ट पार्ट इज़ फिक्स कैपिटल एंड सेकंड पार्ट इज़ वर्किंग कैपिटल. ओके, तो फिक्स कैपिटल क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड कॉपीराइट्स. एंड वर्किंग कैपिटल मीन्स फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस. यानी बिजनेस को डे टू डे ऑपरेट करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना है, वेजेस देना है, जिस लैंड एंड बिल्डिंग में हम रह रहे हैं उसका रेंट पे करना है, कई तरह के बिल्स पे करने होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर्स बिल्स, हाउस टैक्सेस, प्रीमियम्स पे करने हैं. अगर हमने अपने इंश्योरेंस करा के रखे हैं अपने गुड्स के, अपने एसेट्स के, तो उसके भी हमें इंश्योरेंस पे करने पड़ते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर हम गुड्स का बिज़नेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है. विदाउट रॉ मटेरियल हम अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, उसको सेल करके प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते. यानी बेसिकली अगर हम बात करें कि अगर आपको बिज़नेस को चलाना है तो फर्स्ट पार्ट आपके पास मशीनरी होनी चाहिए, मशीनरी को रखने के लिए एक बिल्डिंग होनी चाहिए. दूसरी पार्ट, तो इन सब पे आप जो बियर करोगे, जो इन्वेस्टमेंट करोगे, दैट इज़ अ फिक्स कैपिटल. अब दूसरी बात, मशीन क्यों रखी है आपने?
प्रोडक्शन करने के लिए। अब मशीन में प्रोडक्शन कब होगा? जब आप उसमें रॉ मटेरियल डालोगे। रॉ मटेरियल आएगा कहाँ से? वर्किंग कैपिटल से। ओके, अब ये प्रोडक्शन करेगा कौन? ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ अ लेबर। लेबर को आप क्या पे करोगे? वेजेस एंड सैलरी, दैट्स वाई। तो सैलरी एंड वेजेस पे कर रहे हो तो आप उसके लिए क्या पे कर रहे हो? वर्किंग कैपिटल बियर कर रहे हो। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे बिजनेस में दो तरह की कैपिटल की ज़रूरत होती है, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल आर रिक्वायर्ड टू द investment in plant, machinery, land and building, as well as the trademark, patent and copyright. Whereas in working capital, we want the finance required for carrying out day-to-day operation in the business. For example, salary and wages to the worker, payments of various bills and premiums. Okay, so this is the concept of business finance. Now we will move to the next topic, that is concept of financial management. अब इसके साथ एक वर्ड जुड़ गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी फाइनेंस के साथ मैनेजमेंट। द टर्म इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू अगर आप इसको सुनोगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो बेसिकली अगर हम आपको बताएं तो इट इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। यू नो, बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? फाइनेंस होना चाहिए। उस फाइनेंस को आप कहाँ लगाओगे? सर, या तो फिक्स कैपिटल में लगाएंगे और एक वर्किंग कैपिटल में लगाएंगे, तभी तो बिजनेस हो पाएगा और तभी हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। यानी पहला चीज़, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फाइनेंस इज मनी, यानी पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। क्लियर? दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे। यस सर, इन्वेस्ट कहाँ कहाँ कर सकते हैं? अभी मैंने बताया, फिक्स कर सकते हो, वर्किंग में कर सकते हो। फिर तीसरा, इन्वेस्ट कर रहे हो क्यों? ताकि उसको आपको क्या मिलेगा? उस पर प्रॉफिट मिलेगा, आपको उस पर कोई ना कोई रिटर्न मिलेगा। यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट इज़ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस। यानी पैसा मिला, उस पैसे का ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट और उसका यूजेज होना चाहिए। यानी पैसा एडिक्वेट मिलना चाहिए, कम रेट पे मिलना चाहिए, एज वेल एज उसका इन्वेस्टमेंट से आपको ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। यानी यू नो कि दो चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड नंबर 2 इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। ओके, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड ये बताता है कि पैसा कहाँ से आएगा और इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड ये कहता है पैसा कहाँ जाएगा। अब रही बात पैसा कहाँ से आएगा, तो यू नो वेरी वेल इन द क्लास 11th बिजनेस स्टडी, यू नो वेरी वेल, आपने स्टडी भी किया है कि कंपनी जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करती है या कोई बिजनेसमैन कभी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके पास फंड रेस करने के दो ऑप्शन होते हैं, एक इक्विटी का ऑप्शन होता है, एक बोरोड का ऑप्शन होता है। यानी ही हैव अ टू ऑप्शन फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, दैट इज इक्विटी एंड सेकेंड इज अ बोरोड। व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी मीन्स पैसा वो कहाँ से ले सकता है? अपने ओनर से ले सकता है, शेयर होल्डर से ले सकता है। एंड सेकेंड बात बोरोड की आती है तो लोन ले सकता है, लीज पे पैसा ले सकता है। सो देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ एक बात पे ध्यान नहीं देता कि पैसा कहाँ से आएगा, इट विल ऑल्सो फोकस ऑन द वेयर वी यूज़ सच काइंड ऑफ फाइनेंस, यानी हम उस पैसे को कहाँ यूज़ कर रहे हैं। यानी पैसा आए, कम रेट पे आए, हमें उस पर कम डिविडेंड देना पड़े, हमें कम उस पर इंटरेस्ट देना पड़े, एज वेल एज हम उसको जहाँ इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट हम कहाँ करेंगे, या तो फिक्स कैपिटल में या वर्किंग कैपिटल में, तो इतना प्रोपोर्शनेट उसका यूज़ होना चाहिए, इतना इफेक्टिवली उसका यूज़ होना चाहिए कि हम उस पर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिले। यानी हम फिक्स कैपिटल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर हमें फ़ायदा होना चाहिए, यानी हमारे पास ज़्यादा मशीनरी होंगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा सेल होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वेयर एज रॉ मटेरियल पे भी फोकस करना चाहिए कि रॉ मटेरियल ज़्यादा होगा
तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। सो हमें बैलेंस लेके चलना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। यानी व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट गिव्स opportunity to every manager utilization of finance as well as the procurement of fund. The second line, it aims at reducing the cost of fund procured. The first part, यानी जो पैसा आप प्रोक्योर का मतलब होता है जुटा रहे हैं, ला रहे हैं, यानी जो पैसा आप जुटाएंगे उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, रिड्यूसिंग द कॉस्ट, कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल एंड अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड। और दूसरी बात कह रहा है कि आपको उस पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करना है कि रिस्क आपके कंट्रोल में हो और उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न अचीव करें। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों पार्ट पे ध्यान देता है। पैसा कहाँ पे आएगा, आ रहा है तो उसका कॉस्ट कम होना चाहिए, एंड जहाँ हम पैसा लगा रहे हैं, जहाँ हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ रिस्क हमारे कंट्रोल में हो, एज वेल एज उससे जो भी रिटर्न आए वो हाई रिटर्न हो इन कंपैरिजन टू द प्रोक्योरमेंट, तभी तो हम फ़ायदा अपनाएंगे। अब बैंक को देख लो, बैंक इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बैंक क्या करता है? थ्रू द डिपॉजिट स्कीम, सेविंग अकाउंट से, करेंट अकाउंट से एंड रिकरिंग अकाउंट से, देयर वेरियस काइंड ऑफ अकाउंट से वो पैसे अरेंज करता है, यानी प्रोक्योर करता है, और आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, और उस पैसे को वो एज अ लोन अपने बैंक होल्डर्स को या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, और उस पर उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है। अगर वो सपोज़ आपको सेविंग अकाउंट पे 4% का इंटरेस्ट दे रहा है एनुअली, तो अगर वो लोन देता है तो 10% एनुअली पे लोन देता है। सो बेसिकली 6% का जो डिफरेंस है वो बैंक का क्या है? प्रॉफिट है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फोकस ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एट लोवेस्ट कॉस्ट, एट अ मिनिमम कॉस्ट, एंड द यूजिंग ऑफ सच फाइनेंस एट अ हायर return with minimum risk. What I'm saying, financial management focus on procurement of fund at minimum cost and uses of such finance at maximum return with minimum risk. So I hope आपको ये लाइन से क्लियर हो जाएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो नेक्स्ट पैरा इज Financial management is also concerned with the duties of the financial manager in the business. यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर फाइनेंशियल मैनेजर की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वर्क फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज आइडेंटिफाइंग वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड देयर कॉस्ट। यानी सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है। ये हम फाइनेंस की जगह पैसा वर्ड यूज़ करें, दैट इज़ मनी। यानी मनी के क्या क्या सोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ रिस्क। रिस्क का मतलब कोई हमें पैसा दे रहा है, ओके, और वो उस पैसे को मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, रॉ मटेरियल्स में इन्वेस्ट कर दिया या फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया। रिस्क का यहाँ मतलब है कि वो पैसा एक सर्टेन टाइम के बाद ही सामने वाला बंदे को लौटाया जाए। अगर वो बीच में ही आकर, प्रोडक्शन साइकिल के बीच में आकर पैसा रिटर्न कर मांगने लगेगा तो हम उसको कैसे दे पाएंगे। सो यहाँ रिस्क का मतलब ये है कि आपके पास मिनिमम टाइम अवेलेबल हो ताकि आप उस पैसे से पैसा जनरेट कर सको। एंड देयर कॉस्ट की बात करें तो मार्केट में आप सोर्स ऑफ फाइनेंस वही तय करोगे, वही लोगे जो आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न से कम होगी। जैसे अगर मैंने 4% पे किसी से पैसा लिया तो हम उस पैसे को ऐसा यूज़ करेंगे कि उस पैसे से हमें ऑलरेडी 6% 7% का रिटर्न मिला हो, ताकि हम 4% से उसकी कॉस्ट बियर करेंगे और बाकी 3% अपने जेब में रख लेंगे। सो आई होप ये बात समझ में आई होगी। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, दैट इज आइडेंटिफाइंग वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड देयर कॉस्ट। सेकेंड इज टाइमली प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने सोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया रिस्क के अकॉर्डिंग एंड उसके कॉस्ट के अकॉर्डिंग। अब वो फंड आपके लिए टाइमली अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि बिजनेस डायनेमिक होता है, चेंजेबल होता है, अनसर्टेन होता है। सो अगर आपको टाइम पे फंड नहीं मिलेगा तो आप टाइम पे उसका इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे,
टाइम पे इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे तो टाइम पे आपको उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। सो एक तरह से उसका जो यूटिलाइजेशन है कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सो बेसिकली प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड का टाइमली अवेलेबल होना इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज टाइम इज़ अ मनी। जब टाइम चला जाता है तो टाइम पे अगर आपको कुछ पैसे नहीं मिलते हैं तो वो पैसा बेकार है। द थर्ड वन, funds so procured are to be invested in such a way that return are greater than the cost of procurement. It is a very important line. फंड को हमें ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि उस पर जो रिटर्न मिले वो आपके प्रोक्योरमेंट कॉस्ट से ज़्यादा हो। यही तो मैं बात बता रहा हूँ, यही तो मैंने आपको बैंक के एग्जांपल में भी दिया कि बैंक ने 4% के अकॉर्डिंग आपसे पैसा अरेंज कराया, डिपॉजिट स्कीम के थ्रू सेविंग अकाउंट पे आपसे पैसा लिया गया और आपको 4% 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करिए, और उसी पैसे को किसी सेकंड पार्टी को एज अ लोन प्रोवाइड करिए और 10% का इंटरेस्ट कमा रही है और 6% का उसे नेट प्रॉफिट हो रहा है फ्रॉम द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो फंड को मैनेजर को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए कि उस पर जो मिलने वाला रिटर्न है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन द invested fund is must be greater than the cost of procurement. Okay, the next one, ensure sufficient availability of fund as well as check that fund are nothing lying idle. Yes, every financial manager must ensure कि उसके पास फंड की sufficient availability हो, टाइमली भी एडिक्वेटली भी। जैसे पॉइंट नंबर 2 में कहा गया था कि प्रोक्योरमेंट जो होना चाहिए वो टाइम पे होना चाहिए एज वेल एज सफिशेंट भी होना चाहिए। अगर आपके पास सफिशेंट फंड नहीं अवेलेबल है तो कहीं ना कहीं आपका वर्किंग जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी इफेक्ट होगी, आपको रॉ मटेरियल्स खरीदने में दिक्कत आएगी, आपको फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत आएगी। सो अ बिजनेसमैन फेसेस अ वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स व्हेन ही हैज़ इनएडुकेट फंड्स। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि सफिशेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड होनी चाहिए, एज वेल एज फाइनेंशियल मैनेजर को ये भी चेक करते रहना चाहिए टाइमली कि कोई फंड आइडल ना हो। आइडल मतलब क्या होता है? यूजलेस। हम कहते हैं ना, हमारे घर में, मेरे घर में 1 लाख रुपए रखा है कैश। आप कहोगे सर बहुत अच्छी बात है, कैश रखा है आपने। यस, मेरे घर पे है 1 लाख रुपए कैश। क्या ये अच्छी बात है मैं घर में 1 लाख रुपए कैश में रखा हूँ? सर कोई इसलिए रखा होगा इमरजेंसी के लिए, ठीक है इमरजेंसी के लिए रखा हूँ। अब तो इतना डिजिटाइजेशन का ज़माना हो गया, मुझे 1 लाख रुपए निकालने होंगे तो मैं नहीं निकाल पाऊँगा, आराम से निकाल। कहीं ट्रांसफ़र करना होगा तो नहीं ट्रांसफ़र करूँगा, कर लूँगा। सब किस बात की चिंता है? बैंक में जमा कर दो। हम कहेंगे क्यों जमा कर दो? सर घर में रखे हैं तो 1 लाख का 1 लाख है, आपने उसको बैंक में रखा है तो पहले तो सिक्योरिटी हो गई, घर में रखा है चोरी हो गई, 1 लाख रुपए चला गया, प्लस 1 लाख रुपए के चक्कर में पता चला कि किसी के साथ कुछ अनहोनी हो गई, व्हाटएवर। अब 1 लाख रुपए बैंक में जमा, सिक्योरिटी, प्लस दूसरी चीज़ ये है कि बैंक हमको उस पर इंटरेस्ट देगा, मिनिमम 4% देगा, यानी साल भर का मुझे उस पर कितना मिलेगा? काउंट करिए, 4000 रुपये मिलेंगे। तो 4000 रुपये मुझे काट रहा है? नहीं सर। यानी आपने जो घर पे फंड रखा है वो कहीं ना कहीं आइडल है क्योंकि आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो। सो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मनी होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मनी का सफिशेंट अवेलेबल होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मनी का सफिशेंट यूटिलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है। यही फोर्थ पॉइंट बोल रहा हूँ। सो द फाइनेंशियल मैनेजर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं इसको हम लोग एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। पहला कि आइडेंटिफाई वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड देयर कॉस्ट। नंबर 2, टाइमली प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। नंबर 3, funds so procured are to be invested in such a way that returns are greater than the cost of procurement. Number 4, ensure sufficient availability of fund as well as that fund are nothing lying idle, यानी funds आपके पास सफिशेंट हैं बट उन फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई फंड अनयूटिलाइज रखा हुआ है, आप उस पर सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बियर कर रहे हैं। यू नो व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आपने क्लास 11th में इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ा हुआ है कि जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। आपने 1 लाख रुपए घर में रखा है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, अगर आप उसको मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी 4% आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बियर कर रहे हो। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एज वेल एज
check that funds are not lying idle. So the next part of today's video, that is डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट की, सो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है बेसिकली इसी से हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी बनती है. सो अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न ऑन ब्रिगहैम, financial management is an area of financial decision making harmonizing individual motives and enterprises goals. यानी इन्होंने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी है बिजनेस मैनेजमेंट की, कि बिजनेस मैनेजमेंट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का एक ऐसा एरिया है जिसमें हम इंडिविजुअल मोटिव्स के साथ साथ एंटरप्राइजेस गोल्स को हार्मोनाइज का मतलब है इंटीग्रेट करते हैं, मिलाते हैं. आप कहोगे सर इसमें फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है? तो आप इन द एवरी स्टेप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इन द एवरी स्टेप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या स्टेप्स मैंने आपको बताया. फर्स्ट, चेक द सुटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस. नंबर सेकेंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. 2 पॉइंट हैं, 2 स्टेप्स हैं, दोनों जगह आप डिसीजन ही तो ले रहे हो. आपको 1 लाख रुपए बहुत कम है. सपोज आपको मार्केट से 10 करोड़ रुपए लेने हैं, आपके पास 5 करोड़ अवेलेबल है एज ए कैपिटल और 5 करोड़ आपको एज ए लोन लेने हैं, तो आपको डिसीजन ही तो लेना है. लोन लें, किस बैंक से लें? पहला आता है पब्लिक से लें कि प्राइवेट से लें. दूसरा आता है किस पब्लिक बैंक से लें या किस प्राइवेट बैंक से लें. ऐसा तो नहीं हम डिबेंचर इशू करके भी ले लें जैसा आपने पढ़ा था. एक आता था रिटेन अर्निंग, इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ ओन फंड. तो आपके पास कई ऑप्शन है जिससे आप पैसा अवेलेबल करा सकते हैं फॉर्म में, लेकिन वहाँ आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. सच डिसीजन इज कॉल्ड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग. सेकंड आते हैं दूसरा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो आपके पास फाइनेंस है उस फाइनेंस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उस पर रिटर्न भी हाई रिटर्न आना चाहिए. अब हाई रिटर्न आएगा तो आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा. आपके पास 10 करोड़ रुपए आपको इन्वेस्ट करना है, 5 करोड़ आपने खुद लगाया, 5 करोड़ रुपए आपने बोरोड से ले लिया, 10 करोड़ आ गए. अब 10 करोड़ लेने वाले करोड़ों लोग खड़े होंगे आपके सामने कि मेरे में इन्वेस्ट कर दीजिए, आइए मेरे में इन्वेस्ट करिए, आइए ये काम करिए. 10 लोग खड़े होंगे. एक सप्लायर मिलेगा, कहेगा सर इसमें काम करिए, बिजनेस बहुत प्रॉफिट. यानी आपको वहाँ डिसीजन लेना पड़ेगा रिलेटेड टू द फाइनेंशियल कि हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें. आप छोटी सी हम बात करते हैं आपसे, अगर आपके पास 100 रुपये होता है, 1000 रुपये होता है, 2000 रुपये होता है, तो भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो कि उस पैसे को हम किस बैंक में जमा करें. जिस बैंक का नाम अच्छा होता है या जिस बैंक का लोगो अच्छा होता है, बेसिकली आप उसको चूज़ कर लेते हो. आप ये नहीं देखते हो कि वहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वहाँ फैसिलिटीज़ क्या क्या है. तो बेसिकली हम कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव चीज़ों पे जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं. बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव क्वालिटीज़ को भी स्टडी करने को कहता है, और कहता है भैया वहीं इन्वेस्ट करो जहाँ रिस्क कम हो, जहाँ इन्वेस्टमेंट रिटर्न ज़्यादा हो, और एज वेल एज आपका जो फंड है वो यूज़लेस नहीं होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए. तभी आप फाइनेंशियल मैनेजर, एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हैं और अपने फंड को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं. सो नेक्स्ट पार्ट्स पे जाने से पहले मैं इसको कल मैं डिस्कस करूँगा, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. बिकॉज ऑफ ये टॉपिक थोड़ा बड़ा भी है एज वेल एज इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो इस सारे टॉपिक्स में आ जाएंगे. सो आज हम लोगों ने जो पढ़ा पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आज के दिन टुडे वी विल स्टार्टेड द पार्ट बी, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट बी विच इज़ ऑल्सो द चैप्टर नंबर 9, बिकॉज 8 चैप्टर हमने पार्ट ए में डिस्कस कर लिए हैं और पार्ट बी में चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट है, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट बी. व्हाट इज़ बिजनेस फाइनेंस? सो सिंपल वे वी कैन से money required for carrying out business activity is called business finance. There are basically 2 types of investment of the finance, that is in the fixed assets, tangible and intangible. It is known as fixed capital investment, and finance is required for carrying out day-to-day operation of the business, and such kind of finance is known as working capital. Thereafter we discuss the concept of financial management. So financial management is concerned with optimum procurement as well as uses of finance. Okay, and it aims reducing the cost of funds procured and keeping the risk under control and achieving effective deployment of such fund. यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन एम होता है कि हमें ऐसी जगह से फंड रेस करना चाहिए जहाँ पे उसकी कॉस्ट और रिस्क कम हो और
इन्वेस्ट करते समय रिस्क को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के साथ साथ जहाँ रिस्क कम हो, एज वेल एज हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके एज़ पर द सिचुएशन। सो आज के इस पूरे वीडियोस में हम लोगों ने तीन इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस की। द फर्स्ट पार्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, सेकेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड थर्ड इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। सो आई होप कि today's topic is clear for you. And apart from this, if you have any kinds of doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.